everyone, this is Ruby Bhatia, television presenter and happiness life coach, and welcome to Reflections with Ruby Bhatia, an exclusive women-only podcast where we interview women from all walks of life about their passion, their business, their work, and what they're doing in the world. Today we have with us Arunima Roy. She's the founder and director of RK Roy Foundation, which is exclusively dedicated to helping the underprivileged children develop the skill of hockey. Okay, so this is exciting. Arunima, are you there? Yep. Hi, Ruby. How are you? Hi, Arunima. Welcome to this show. I just wanted to remind our viewers that this is in association with IIW, Inspiring Indian Women, a not-for-profit NGO based in the UK and in India. Welcome to the show, Arunima. Oh, thank you so much. Thank you so much for having me. I'm so happy and so thrilled for this podcast. So thank you so much for having me. And this is something new. This is the first time on our podcast that we're talking about sports. So the RK Roy Hockey Academy is based in Patna, Bihar, and you reach out to the underprivileged children who can't even afford to buy basic gear or basic clothing to play hockey. And Yeah. you are helping at least 75 kids who have joined you. So Yeah. tell me about this. I mean, this is beautiful. How did you get into hockey yourself? Tell me about that. Oh, yeah, it's actually a long story, but I wanted to make it short that I'm a hockey player. I'm a national hockey player. My younger brother, he played for India for a very long time. He was once as a served country as a captain, Indian hockey captain, Ajitesh Roy. Yeah. Ajitesh, he was the captain Yeah. of the hockey Yeah, team. his name is Rajitesh Roy, and my family is very, positive and give us so much of support to do the hockey. And yeah, being in Bihar in 90s and being in Patna, chasing your dream in sports, it's really big deal for us and for our family too. But yeah, but still my family had that guts to send a girl to the ground, to the field with the knicker. And it's a right really, when I look back, I really feel how daring my parents was that time. So yeah, that's how the hockey we connected with the hockey. And not very long, but in 2017 we lost my father. So we very next year we thought, okay, we'll do something, because he was the sports lover. He was actual sports lover. So Okay. yeah, we started this foundation and academy on his name. My father's name is RK Roy. So we started this academy and foundation on his name, and very, like, we feel like we have a blessing, his blessing with us. And we got, like, in first year we got like 75, 80 student with us, players with us. And we have like 5 coaches on the field to take care of the practice, take care of the management. Obviously, my younger brother and my elder brother. My elder brother's name is Abhishek Kumar. Although he's not hockey player, but because of us, he's too much into hockey. So he Big knows fan, everything. big supporter. Yeah, yeah. So he knows everything. He has no way out. He has to do it. And yeah, he's also happily do it. So yeah, that's how we started. And we are here, and hopefully we have a long way to go to. But this So is so beautiful, Arunima. I just want to say, like, kudos to you. Hats off to what you're doing. क्योंकि जब हम लोग स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, हम लोग आर्टिस्ट होते हैं, तो हम इतना अपने आर्ट में, अपने स्किल में, अपने स्पोर्ट में खो जाते हैं कि हमें ये कभी कभी ध्यान नहीं आता कि हमें औरों के लिए भी कुछ करना चाहिए. तो आपके अंदर ये भावना आई कि जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, जो खेलना चाहते हैं, जो टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, उनको भी हमें मौका देना चाहिए, उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको भी मौका, अलग एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां पर दे कैन प्ले एंड दे कैन ग्रो इन द फील्ड ऑफ हॉकी. तो वहां से शुरुआत हुई आरके हॉकी अकेडमी, आरके रॉय yeah. हॉकी अकेडमी की. ना एक बात बताइए मुझे, यूर बेस्ड इन पटना बिहार, राइट? तो अभी आप पटना बिहार से ही ज्वाइन कर रहे हैं हमें? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ लंदन में रहती हूँ. Okay. या How do you reach out to your international audience? Now, I believe that you've also started something in London, yes, yes. community group. Yeah, What's it me, called? yeah, actually, yeah, that's a good question. Thank you for asking this question to me, because सबको ऐसा feel होता है कि how do you manage in India, especially not even the cities like Delhi and Mumbai, where you have lots of other resources.
but how do you manage in Patna? Right. Yeah, it's a very difficult people to understand. So see, what I do, I am a founder director. As a founder director, my main job is to getting funds. My main job is to reach out the big giant peoples who can help us to, run this academy. My job is to reach to make connection with the government Okay. in Bihar, as well as in the Hockey India government, so that they can help us and they can understand what our goal is, what cause we are working for. और बस वैसे ही हम लोग मेरा मैं एक्चुअली मेनली इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करती रहती हूँ सबसे, तो फोन आप के थ्रू। इंटरप्ट यू हियर, बेसिकली पटना से आप यूके कब शिफ्ट हुए थे? ओ 2007। ओके, और वहां जाके आपने स्टार्ट किया द हाँ एशियन कम्युनिटी ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स, हाँ, राइट? यहाँ पे, और वो एशियन कम्युनिटी ग्रुप इज नॉट वेरी, इट्स वेरी न्यू बॉर्न एक्चुअली। तो ओके। हम लोग, हाँ, लास्ट ईयर ही मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई जो मैं करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग देख पाती कि मैं कितना बिजी रहती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा हाफ डेज उसमें उसमें ही जाता है, मैनेज करना कोचेस को, मैनेजर्स को, प्लेयर्स का कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज एज अ अंडर प्रिविलेज आपको सिर्फ प्लेयर तक आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको उनका फैमिली बैकग्राउंड को भी चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस पे आने में दिक्कत होगा। एज यू नो, इन इंडिया अगर बच्चा थोड़ा भी बड़ा है, 10-12 साल का है, पीपल, उनके पेरेंट्स, अगर घर में पैसे की प्रॉब्लम है, उनका पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चा मेरे साथ भी साइकिल रिक्शा चलाने लगे, मेरे साथ सब्जी बेचने में मुझे हेल्प करे, मेरे साथ किराना स्टोर पे बैठे। तो उसको सॉल्व करने में हमारा काफी एफर्ट जाता है, बिकॉज अगर बच्चे उधर इन्वॉल्व होंगे तो ग्राउंड पे नहीं आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर टीम उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? ऑब्वियसली राइट। हम लोग एज जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका फ्यूचर हमें लगता है कि अब आई हैव, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देयर फ्यूचर। तो उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा उनका बैकग्राउंड में भी ये करना पड़ता है, हमें मैनेज करना पड़ता है। तो वही मेरी फ्रेंड्स लोग मुझे देखी और उनको लगा कि अरे ये तो चलो बहुत बिजी रहती है और कुछ अच्छा कर रही है, तो ऐसे भी हम लोग चैरिटी करते हैं, तो ये बेस्ट है कि हम लोग एकदम सामने सामने खुद से चैरिटी कर रहे हैं। तो राइट। 3 फ्रेंड्स हैं जो मुझे सामने आकर के मुझे हेल्प की, मानसा, प्रिया एंड पम्मी। दे ऑल आर फ्रॉम इंडिया। सॉरी, नाम नाम फिर से बताइए। मानसा, हाँ। प्रिया एंड पम्मी। Okay, so a big shout out to all three of you. Thank you for Yeah, yeah, obviously they are so you. lovely, so generous, और वो लोग हमें मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मैंने लास्ट ईयर से सावन मेला करके एक यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया, मतलब एक इवेंट शुरू किया। Right. और या एंड हम लोग को लग रहा था कि लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लोग नहीं जानते और ये एकेडमी मेरी थी, ठीक है, तो लोग को मुझे हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं कितने लोग आएंगे, एंड वी वर होपिंग लाइक चलो चलो 35-40 लोग भी आएंगे तो चलेगा, एटलीस्ट अवेयरनेस होगा कि हाँ हम लोग ऐसा करते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, वी एंड अप विथ 85 पीपल। हमें मना करना पड़ा कि अरे मत आओ, अब हॉल में जगह नहीं है। Fantastic. That's fantastic. और इसमें एक और चीज हम लोगों ने ऐड किया एक्चुअली, मेरा यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो घर से अपना बिजनेस चलाती हैं, ठीक है, जो अपना कुछ भी प्रोडक्ट है वो घर से बेचती हैं, चाहे वो क्लोथिंग हो, कोई भी आइटम हो, हाउस होल्ड आइटम। तो Right. उनको एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है टू शोकेस देयर एक्चुअल प्रोडक्ट, बाय फील एंड बाय वर्चुअली सी इट, सॉरी, देखने का, उसको टच करके महसूस करने का। तो मुझे ऐसा लगा कि इज दिस द ऑल्सो वे कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूं, कि आप आइए, आप अपना स्टॉल लगाइए, आप अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट को शोकेस कीजिए, और उससे आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। और वो लोग भी आए, और मतलब मैं क्या बताऊं रूबी, वो लोग इतने खुश हुए, क्योंकि उनका लास्ट ईयर जो जो ज्वाइन किए थे, आए थे, स्टॉल लगाए थे, उनका बिजनेस 5-6% ज्यादा बढ़, मतलब 5-6 गुना ज्यादा बढ़ गया। कल Fantastic. मैं हाँ, कल ही मैं अपने एक स्टॉल ओनर से मिली थी उसका गणपति पूजा में, और वो इतने अपनी मम्मी को बता रही थी कि मैं गई थी सावन मेला में मम्मी इन्हीं के इवेंट में, और इतना अच्छा मेरा तो एक्चुअली मेरा बहुत सारा ना पॉइंट टिक हो रहा है, Wow. अकेडमी के थ्रू। और में वाकई एक मेला है जहाँ पे एग्जीबिशंस भी हैं, स्टॉल्स भी लगते हैं। हाँ There's food हाँ also, I guess, right?
हाँ फूड है, और अच्छा, और हम लोग एक Also, we can't live without our food. We need our food. वो नहीं, और इसमें एक और है, क्योंकि क्या, हम लोग एज अ वुमेन व्हाट वी नीड, वी वांट टू गेट रेडी, ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, कि कोई मिले ऐसा जगह जाके, कि यहाँ पे ज्यादा लोग ऐसा साड़ी वाड़ी पहन के तो नहीं घूमते हैं, कि हाँ बिल्कुल। जनरली आप घूम सकते। तो हम लोग ने उसके लिए क्या किया, एक एक स्पेशल प्रोग्राम रखा, ये सावन क्वीन। Oh wow, okay. उसमें एक सावन क्वीन रखा, जिसमें आपको, यू हैव टू वॉक, ऐसे नहीं कि आपको सावन क्वीन मिल जाएगा, Right, आपको like स्टेज a पे, little pageant, a हाँ beauty. कैट वॉक करना है, आपको स्टेज पे कैट वॉक करना है, अपना नाम बोलना है, अगर आप कुछ करते हैं तो आप बताइए, एंड देन देयर इज अ जजेस, Wow, okay. जजेस जो पॉइंट देते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम लोग बहुत जनरस ही रखे हैं, नॉर्मली रखे, बट या दे गिव द पॉइंट्स, एंड हम लोग टॉप 3 सावन क्वींस को गिफ्ट भी देते हैं, Wow, क्राउड के साथ, I must क्राउड say के you're साथ। so talented. I mean, sports से from being a hockey player yourself, फिर आप यूके में शिफ्ट हुए, उसके बाद you continued, to हम्म। support what was happening in Patna with your RK Roy Hockey Academy, the foundation, which is by the way registered with the Indian यस, government, या, and is doing so much to help the underprivileged children to pursue their dream of hockey. और फिर आपने सावन मेला ऑर्गेनाइज किया to raise funds for the RK Roy Hockey Academy, और वहां पर आप तो एक फुल फ्लेजेड मीडिया पर्सन हो गए हैं, वहां पर आप ब्यूटी पैजेंट भी कर रहे हैं, वहां पर you're helping exhibit the work that they do. It's just amazing how you're, as a person, you're so and multi-talented. By the way, are you married? Do you have kids as well? I am married. I'm married, happily married from last 18 years now. And how और many kids do you दो बच्चे हैं मेरे, एक have? Talk about multitasking and multifunctional and nothing. multi-talented. To be very honest, Ruby, I really enjoyed my work. I Okay. really, really love enjoying my, I mean, started enjoying my work, and मैं जो भी कर रही हूँ, जैसे भी, जब अप्रिशिएशन मिलता है, लाइक फ्रॉम ये रश्मि से, IIW से आप लोग आए में हमारे साथ, तो ये इतना ज्यादा मुझे खुशी होती है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब ये इस साल जब मैं ये कर रही थी सावन मेला, मैंने रश्मि को कॉल किया था, मुझे पता चला रश्मि के बारे में, मैंने कॉल किया, एंड स्ट्रेट अवे फ्रॉम माय फर्स्ट कॉल शी वाज सो फ्रेंडली, एंड हाँ हाँ हम लोग सपोर्ट करेंगे, हाँ हम लोग करेंगे। एंड मुझे इतना, तो यही और क्या चाहिए मुझे, मतलब मुझे इतना खुशी होता है कि यार यहाँ पे मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, जो लोग के दूसरों के लिए करना चाहते हैं, जिनको जरूरत है, विच मैं इज। अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ, रश्मि कौन है? रश्मि इज विद द IIW, इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन, which is the not-for-profit NGO based in the UK and India, जिनके साथ और जिनके द्वारा ये प्रोग्राम आपको पेश हो रहा है, Reflections with Ruby Bhatia. So a big thank you to Rashmi, because थैंक यू, in क्लैप फॉर रश्मि। yes, definitely. In this show, we are showcasing women, from all over the world who are doing beautiful things. So, inspiring Indian women is doing just that. We're helping women all over the world to realize that you can pursue your dreams as well. And whatever your dream is, the entrepreneurs who've joined you in your exhibition, Arunima, जो भी Yeah. आपका passion है, आपका dream है, we are there to inspire you, motivate you, encourage you, and help you to reach out so that you can expand your business and do better in it. Of course, provide your service to the world who maybe doesn't even know that you exist. So if you think that you need the word out there, then do contact us and you can be with us on this show. So Arunima, abhi bataiye aap Savan Mela, I think this is the second time that you're doing it this year. No, we have done this year already, second time, Second and time? हो What गया is the हमारा। organization normally? और यू वोंट बिलीव, हमारा फुटफॉल 170 था। Okay. Wow. और हमारे यहाँ पे हमारी लोकल MP भी आई थी, पैम कॉक्स, वो भी आई थी। वी इनवाइटेड ये 4 काउंसिलर्स को भी हम लोगों ने इनवाइट किया था, जो लोकल काउंसिलर्स थे। Okay. तो ये अब वो लोग भी बहुत खुशी खुशी वॉक भी किए थे फैशन शो में, तो वो बहुत इंजॉय किए, सब लोग बहुत एंजॉय किया। तो या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वन, विच इज नॉट सावन मेला, बट या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू वन इन दिसंबर। Okay. हाँ, जो मेरी एक फ्रेंड है, मैंने बताया था प्रिया का नाम, वो हर साल यहाँ पे कम्युनिटी के लिए हम एक गेट टुगेदर रखती है। Okay. या तो बिकॉज अब हम लोग वो मेरे साथ अटैच हो गई है, तो अब उसको लगता है कि नहीं, अब जो भी करेंगे
इसी के लिए करेंगे, एक नहीं होता है ये एकेडमी के नाम पे ही करेंगे, आर के रॉय हॉकी एकेडमी के नाम पे ही करेंगे। तो हम लोग अभी Right. प्लान करते हैं, ये अंडर प्रोसेस है, लेकिन आज दिसंबर में एवरी ईयर, मतलब लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था एक डिस्को थीम करके क्लब ऐसा ऑर्गेनाइज किया था। इस बार हम लोग फैमिली के साथ, और यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो जैसे हमारे बच्चे हैं, वो लोग कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा है, कोई बैडमिंटन में बहुत अच्छा है, बट रिकग्निशन नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, जा रहे हैं क्लब में खेल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो इस साल हम लोग एक प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें सभी बच्चे अप टू 18 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं, वो उनका क्या अचीवमेंट है वो हम लोग गैदर करने वाले हैं, और Oh, उन wow. सबको स्टेज पे एक रिकग्नाइज पर्सनालिटी से उनको अवार्ड दिलवाएंगे। तो Oh, ये that's एक हम, fantastic. हाँ, तो बच्चों को भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं अच्छा। Yes, absolutely, absolutely. So now R.K. Roy Foundation and the R.K. Roy Hockey Academy, ये सिर्फ पटना and बिहार में based है in the UK, or do you reach out to other people across India and around the world? नहीं, अभी अभी वो पटना में ही है, अभी पटना में ही है, और ये कर क्योंकि तो हमारे ये जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इसके ब्रांचेस स्टार्ट करो ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, व्हाई लिमिटेड टू पटना? नाउ वी आर इन मुंबई, ठीक है? तो अब मुंबई में जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको किसी भी स्पोर्ट में अगर इंटरेस्ट हो तो मे बी दे कैन रीच आउट टू यू, और हॉकी at least for sure, but any sport I think they can reach out to you and they can start branches, and then we can reach out to more kids who really want to pursue their passion for sports. या 100% है अप टू, बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं वहां पे जाकर के रिसोर्स नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई भी ऐसा आदमी मिल जाता है जो मुझे वहाँ कांटेक्ट दिखा सके कहीं से कि हाँ भाई तुम इससे जाके मिल लो, हो जाएगा। जस्ट मेरा यंगर ब्रदर जो अजितेश की बात करें, वो पुणे में रहता है, सो Right. फॉर हिम कम्यूटिंग मुंबई इज नॉट बिग डील फॉर हिम। No, I really feel that internet has brought the world much closer. The world is a much smaller place now. And agar aap is program ko dekh rahe and you want to support the underprivileged children, please do reach out to us and reach out to Arunima. And also, if anybody wants to financially support, then we're looking for sponsors. Anybody who would like to sponsor a child or sponsor the children who would like to play hockey, then we would be very thankful. And I think it's a great opportunity because sports is something that really gives people fitness, first of all, and it's entertaining and it's not corrupting. I mean, my kids play football, they love football. I'm more into spiritual life, and I wonder sometimes, about football and whether, because I'm more into, like I said, spiritual life, social service, and things like that. But I see them, and when they play, they learn discipline, right? They learn sportsmanship, they learn team spirit, they are fit, they're happy, and they're enjoying it. And I think boys will be boys, they're going to play football. So, नहीं, एक्चुअली स्पोर्ट्स के साथ एक प्लस पॉइंट है कि स्पोर्ट्स आपको फिजिकली, मेंटली एंड सोल आपका बहुत प्योर बना देता बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी यही बोलने वाली थी। आई बिलीव इन, बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच माई सेल्फ, सो आई बिलीव इन ऑप्टिमाइजिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल। और जब है। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, बिल्कुल आपने जो कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, तो बॉडी तो फिट रहती है, मेंटली भी आप एक्टिव रहते हो, एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो यू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम द आई टू द वी, हाउ वी Yes. कैन। आप अगर टीम इवेंट कर रहे हो, आप टीम टीम के साथ खेल रहे हो, आप सोच नहीं सकते हैं आपको कितना अपना चीज उनको देना होता है, और आप खुशी खुशी देते हो क्योंकि पूरी टीम को फायदा होगा उससे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई मीन, मैंने पर्सनली बहुत लर्न किया स्पोर्ट्स से, आई एम वेरी लकी कि मैं आप अपने, खेलते हो क्या? डू यू स्टिल प्ले? या आई वांटेड टू कंटिन्यू, बट अभी अब जैसे ये सब तो है, मेरा दूसरा है कि मैं मेंटल हेल्थ के लिए भी यहाँ काम करती हूँ। ओके। तो वाओ। आई वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के जो पेशेंट्स हैं, वाओ। उनको, उनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं एक्चुअली इसमें हूँ, ऑफिस मैनेजर हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको हेल्प करता है। और कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप लेकिन कभी, आई मेरे पर्सनली बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 बात करना चाहते हैं। तो आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन ए क्लिनिकल साइड समटाइम, लेकिन हाँ वाओ। मैं वो भी करती हूँ तो।
अलग ही एंगल बताया आपने। तो बट अरुणिमा, आप कभी कभी अपने बच्चों के साथ तो खेलते होंगे ना, थोड़ा सा हॉकी, लिटिल बिट हियर एंड बिल्कुल। देयर। मैं हर साल इंडिया जाती हूँ अपना, क्योंकि एकेडमी का एक टूर्नामेंट करती हूँ, जो बच्चे, जो लोकल बच्चे जो नया नया खेलना सीखे उनको टूर्नामेंट देने के लिए। तो हम हर साल एक जाके वहाँ पे एक टूर्नामेंट करते हैं। तो बच्चे मेरे जाते हैं और वो खेलते हैं, इंजॉय करते हैं वहाँ पे बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है। That's fantastic. और फिर Okay. मेरे, तो मैं अभी भी और, हाँ जी, so is there anything else you'd like to share with our viewers about what you're doing या and मैं डेफिनेटली मैं रूबी बोलना चाहती हूँ सबको कि प्लीज आप आइए आगे, आरके रॉय हॉकी एकेडमी को आप हेल्प करिए। हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, 7-8 साल हो गए हैं हमारे एकेडमी को चलते हुए, और वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ प्लेयर्स विथ अस जिनका हमें फ्यूचर बनाना है, जिनका फ्यूचर बहुत आई डोंट नो क्या था। और अभी हमारा लास्ट बैच निकला है, जो फर्स्ट बैच हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से बहुत सारे प्लेयर्स को गवर्नमेंट जॉब हो गया है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई कहीं कहीं, जिनको अभी कंटिन्यू खेलना है वो लोग को हम लोगों ने बड़े अकेडमीज में शिफ्ट कर दिया है। सो वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, बट वी डेफिनेटली नीड सपोर्ट फाइनेंशियली एंड political support, anything, any way you guys can support us, this will be really really helpful and great for us. और yeah, that's it और क्या बोलूं। so a big thank you for being on our show, and we wish you all the best with your future projects. Thank you so much, Ruby. Thank you for having me again. I'm really, and I mean, we always on fire by you. We have seen you in the television. So Thank you. I'm so happy to see you like this. So thank you so much for having me with you. Yes, thank you. So that's Arunima Roy, okay, the founder and a director at RK Roy Hockey Academy and the RK Roy Foundation, which is supporting underprivileged children to pursue their passion for hockey in Patna and in the UK also. So please contact her if you would like to participate. So you're watching Reflections with Ruby Bhatia, which is an exclusive women-only podcast. Gentlemen will have to wait. And this is in association with IIW, Inspiring Indian Women, which is a not-for-profit NGO based in the UK and in India. So thank you to all of you for watching. और अगर आप इस शो में आना चाहते हैं, तो please contact us. We'd love to have you. Thank you and see you next time.